Good afternoon, sir. Hello, good afternoon to everybody. Good afternoon, you all, please. And once again, I'm asking you not to open your video. I will remove from the class. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to everybody, please. Good afternoon, sir. Okay. Aditya Verma, stop your video. Krishi, stop your video. I will not ask you again and again. Please, all of you, stop your video. Ujjwal 10th B. You are raising your hand? No. So all names are appearing on the screen. Okay, that's good. Some of you have written your section also. Very good. Yeah. Some of you have written your name, 10C and 10B. That's good. It's easy to identify. All of you, please update in future. In the next class, update your name with your class and section. That's very good. Good idea. And Bhavya 10B. So let's start today class. And who one student can tell me, raise your hand, from where we have to start? Yes, please. Who can tell me from where we have to start today? Raise your hand. Let me ask Soumya. 10C, Soumya Goyal. Not working. Aditya Verma, again you are on the video. I said I will remove you from the class. Don't do this thing. I'm saying raise your hand if you can tell me from where we have to start today. Bhumika, let me try. It's not working. Yes, who is there? Anyone? Anybody can tell me from where we have to start? Drishti, yes, please. I am trying to unmute, but it's not working. There's some problem. If you can unmute yourself, please unmute yourself and tell me. Yes, Drishti. Resource planning. Yes, from where? Land resources? Rio de Janeiro. Resource planning. No. That we will not study. Sir, we have to start Rio de Janeiro Earth Summit 1990. No. We will not go there. This you have to study yourself. So next topic is resource planning. Okay? Sir, yes, sir. Resource planning. Thank you so much. Resource planning. So we are studying today. That's good. Thank you. Now you mute yourself, please. Soumya, now don't raise your hand. Let's start. Okay? Okay. So today's topic is resource planning. Okay? Resource planning. Why we need resource planning. So today's first question comes. Note down, all of you. सब लोग लिखेंगे. Question number 1 आज का. This is the first topic. Topic is resource planning. And the question comes, what is resource planning? What is resource planning? And why it is required? And why it is required? In other way, in और करके दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं. Why resource planning is important? Why resource planning is important?
for any country, okay? So why resource planning is important for a country? किसी भी country के लिए resource planning important क्यों है? Okay? You all know when we talk about India, there are so many states in India. Do all the states are having all type of resources? Think yes or no in your mind. But the answer comes in your mind. क्या सारे states के पास सारे resources मिलते हैं? Iron ore, copper, mica, coal, petroleum, these all things. Lot of are there. The answer is no. Okay, all the resources are not found in all the states. Okay. Number two, the quality. The quality of resources is same in all the states. क्या सारे states में अगर iron ore मिलता है, coal मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, इसकी क्वालिटी सेम है? आंसर इज नो. ओके, कहीं पर क्वालिटी अच्छी है, कहीं पर बीच की है, कहीं पर खराब. इफ देयर आर सपोज 100 टाइप ऑफ रिसोर्स फाउंड इन इंडिया इन वन स्टेट, क्या सारे स्टेट में 100 के 100 रिसोर्सेज मिलते हैं? नो. कहीं पर 4 मिल रहे हैं, कहीं पर 40 मिल रहे हैं, कहीं पर 60 टाइप के मिल रहे हैं, कहीं पर 10 टाइप्स के मिल रहे हैं. ओके, इट मींस नंबर ऑफ रिसोर्सेज कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है. नेक्स्ट कम्स क्वांटिटी, अमाउंट, रिजर्व्स. एग्जांपल फॉर कोल, अगेन कोल और आयरन ओर. इन सम स्टेट्स, फॉर एग्जांपल झारखंड and Chhattisgarh are having large amount of coal resources and iron ore resources. Do we have coal resource, iron ore resource in all the states of India? No. Only few states are having. And the large amount, quantity is found in Jharkhand, then Chhattisgarh. Also some other states, Odisha, West Bengal. Okay. So what we have seen, what we have discussed. Number one, do we have all type of resources in all states of India? Answer is no. Number two, quantity. Do we have same quantity of iron ore, coal or any resource in all states of India? No. कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बीच में है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं. There are so many states which do not have resources or any type of resources. Number three, quality. सबको मालूम है the quality of coal. There are, आपने पढ़ा होगा 4 types of coal. याद करो, साइंस में पढ़ा होगा आपने 4 types of coal and they are A for anthracite. नोट कर सकते हो, लिख लो आप, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर पूछूंगा, फिर भूल जाओगे. Note down, there are 4 types of coal. A for anthracite, best quality coal. Number 2, B for bituminous. पढ़ा होगा, याद आ रहा है आपको? A for anthracite, okay, you can check the spelling on the Google. Number 2, bituminous या bituminous. Number 2, ये it's a very good quality anthracite, bituminous good quality coal. Number 3, lignite, 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 C grade quality coal. Okay, थोड़ा सा खराब है, average. Very good anthracite, good bituminous, lignite, average type of coal. घटिया क्वालिटी का lower quality coal, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा. I am telling you, the 4 type of coal is peat, P-E-A-T, peat. Okay, so we have 4 types of coal. A for anthracite, B for bituminous. Number 3, lignite,
Number 4, peat, P-E-A-T, 4 types of coal. आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन होगा, रिसोर्स की बात कर रहे हैं. 4 types of iron ore also. There are 4 types of coal and there are 4 types of iron ore. करने का तरीका क्या है? अभी आपने क्या लिखा है? 4 types of coal. You make a line. लाइन खींच दो. पेज के बीच में अगर लाइन आ रही है, जहां भी आ रही है, ये क्या है? ऊपर लिखेंगे टाइप्स ऑफ, और इसके ऊपर लिखेंगे कोल. और ये 4 टाइप्स ऑफ कोल मैंने आपको बता दी है. ऊपर लिखेंगे हेडिंग कोल, 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ कोल हो गए. बीच में लाइन खींचेंगे और इधर लिखेंगे, ऊपर मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ, दोनों की मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ, और इसके ऊपर हेडिंग आएगी आयरन ओर. तो इधर आयरन के 4 हेडिंग्स लिखेंगे, अभी लिखवाता हूँ. इधर आपने 4 हेडिंग्स लिखी हैं कोल की. ओके, इट मींस दिस हेडिंग इज कोल, दिस हेडिंग इज आयरन ओर. मेन हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ. इधर कोल हो गया, इधर क्या हो गया? टाइप ऑफ आयरन ओर. क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? लिख सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन coal and iron ore. Distinguish between coal and iron ore. ठीक है, ये तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मिनरल्स का वहां करेंगे, अभी कर नहीं रहे. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ कोल एंड टाइप ऑफ आयरन ओर. एक ही पेज पर कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं, आमने सामने कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू राइट डिफरेंट आंसर्स. मींस द टाइप ऑफ कोल है तो इधर 4 पॉइंट्स हैं, 4 में से 2 पॉइंट इधर से ले लिए, 2 पॉइंट इधर से इधर आ जाते हैं. ओके, अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ आयरन ओर रिसोर्सेज, आयरन ओर, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें से भी 2 या 3 इधर के होते हैं और 2 या 1 इधर से आ जाते हैं. तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि नाम लगभग थोड़े से एक से लगते हैं. Okay, human nature, we can get confused. So what we are going to do today, कि हम बीच में लाइन खींच रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोल, टाइप्स ऑफ आयरन ओर, 1 2 3 4. यहाँ आपने 4 टाइप्स ऑफ कोल लिखे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. इधर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ आयरन ओर. ठीक है, नंबर 1 मैग्नेटाइट, and number 2 is हेमेटाइट. नंबर 1 मैग्नेटाइट, मैग्नेट से होती है, जो मैग्नेट होती है इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है आयरन की, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. ओके, तो नंबर 1 इज मैग्नेटाइट, द बेस्ट क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी में आएगा हेमेटाइट, HEMATITE, हेमेटाइट. नंबर 3 लिमोनाइट. ओके, अभी आप लिखेंगे स्पेलिंग वगैरह और जो कुछ है वो चेक करेंगे गूगल से इसलिए भी चेक करेंगे स्पेलिंग. हो सकता है मैं भी गलत कर दूं, हो सकता है मैंने भी कोल के 4 में से कोई 2 पॉइंट इधर कर दिए या 1 पॉइंट इधर कर दिया. तो आप लोग गूगल से या किसी बुक से या साइंस की बुक से वेरीफाई करेंगे कि कोल के 4 पॉइंट्स ठीक हैं, सर ने सही लिखवाए हैं, और 4 पॉइंट्स आयरन ओर के सही लिखवाए हैं. ठीक है, ये आपका काम है, आपको चेक करना है. आई कैन बी ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ा दूं आपको, तो आप चेक करते रहो. ओके, और व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हो कि क्या क्या सही है, क्या गलत है. ओके, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग यू कैन टॉक टू मी ऑन द व्हाट्सएप एंड यू कैन शो आल्सो. तो once again, types of iron ore: magnetite, number 1; number 2, hematite; number 3, limonite, LIMONITE, limonite. number 4, साइड बोलते हैं SIDE, तो उसी को हम बोलेंगे सिडेराइट, SIDERITE, सिडेराइट. ओके, साइडेराइट से याद कर लो, साइडेराइट. Once again, 1 2 3 4 magnetite, types of iron ore: magnetite, hematite, limonite, और एक फोर्थ कौन सा है? साइडेराइट. ठीक है,
तो 4 टाइप्स ऑफ आयरन और 4 टाइप्स को एक जगह कर रहे हैं, ये है रिसोर्सेज। फिर से आते हैं वापस इसी टॉप पे, आयरन 2 की बात करते हैं। आयरन और कोल क्या इंडिया के सारे स्टेट्स में मिलते हैं? नो। कुछ स्टेट्स में मिलते हैं? यस। क्या सारे स्टेट्स में क्वालिटी सेम है? नो। क्या सारे स्टेट्स में क्वांटिटी सेम है? नो। तो सब जगह सेम नहीं है तो सब जगह इंडस्ट्री हम कैसे लगाएं? एक स्टेट में आयरन और नहीं है, कोल नहीं है, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री कैसे लगाएं? कहीं पर एल्युमिनियम है, कहीं पर कॉपर है, दूसरे स्टेट्स में नहीं है, तो उनके यहाँ कॉपर और एल्युमिनियम के वायर कैसे बनेंगे, कोई भी चीज कैसे बनेगी? तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्लान करती है। क्या प्लान करती है? पता करती है कौन से स्टेट्स में कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से स्टेट किस रिसोर्सेज में रिच है, किस में पुअर है, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। देन दे डू द प्लानिंग, कौन सा स्टेट किस स्टेट को कितना रिसोर्स देगा, कौन स्टेट कितना रिसोर्स दूसरे स्टेट से लेगा, इसकी सारी प्लानिंग कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। और आज ही खत्म नहीं करने सारे रिसोर्सेज, वी हैव टू कीप रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, ऐसा नहीं है कि वी हैव द पेट्रोलियम, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑयल। पहले ही बताया था आपको, इंडिया का टोटल 100% डिमांड होती है पेट्रोलियम की, इसको 40% भी प्रोड्यूस, 40% 40, एंड 60 to 65% भी इंपोर्ट, बाहर से मंगाते हैं। क्यों? जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम है या कोई रिसोर्सेज हैं वो सेव रहे। फॉर दैट व्हाट वी डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी थोड़ा थोड़ा खर्च करें, कुछ बचत करें फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, टॉपिक क्या है सारा समझा दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, नोट करेंगे क्वेश्चन, पेज नंबर 4। Soumya wants to say something. Let me unmute. सर समझ नहीं आ रहा है। आपके यहाँ बेटा सिग्नल की भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सुन रहे हैं हमसे लेकिन समझ नहीं आ रहा। सिग्नल सही आ रहा है, साउंड क्लियर है? सर यस। फिर क्यों नहीं आ रहा? मैंने आपको सबको बताया था कि सारे स्टेट्स में रिसोर्स प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट रिसोर्स प्लानिंग क्या करती है, रिसोर्स प्लानिंग में क्या करती है ना? ठीक है, आपके घर में रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आपके किचन में जब सामान आता है, दाल चावल गेहूं, तो क्या सारे के सारे 100 kg आते हैं? नो। क्या सारे 10 kg आते हैं? नो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, आपके घर में डिमांड के हिसाब से राइस कितना खाए जाते हैं, दाल कितनी खाई जाती है, चने कितने खाते हैं, राजमा कितना खाते हैं, ठीक है, चाप कितनी खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने खाते हैं, आटा कितना खाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपके यहाँ कोई चीज़ 10 kg आती है, कोई चीज़ 5 kg आती है, कोई चीज़ 1 kg आती है। ठीक है, मसाले थोड़े थोड़े से यूज होते हैं, वो 200 ग्राम्स आते हैं, कोई चीज़ 100 ग्राम्स आती है। बट ये घर की प्लानिंग हो गई। हम बात करें कंट्री की प्लानिंग। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, देयर आर 28 स्टेट्स। सो क्या सारे स्टेट्स में सारे रिसोर्सेज मिलते हैं? नो। कुछ स्टेट्स में 5 तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ स्टेट में 10 तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ में 15 तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। मैंने एग्जांपल दिया झारखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ डिफरेंट टाइप के बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज एक मिलता है या 2 मिलते हैं। ओके, ये बात है। नंबर 2, क्या सारे स्टेट्स में रिसोर्सेज की क्वालिटी सेम है? अगर आयरन और झारखंड में मिलता है, बेस्ट क्वालिटी मैंने अभी आपको बताई थी, मैग्नेटाइट। अगर झारखंड में कोल भी मिलता है, बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट। तो क्या ये बेस्ट क्वालिटी इंडिया के सारे स्टेट्स में मिलते हैं? नो। कुछ में मिलते होंगे लेकिन सब में नहीं मिलते। क्या 28 स्टेट्स में आयरन ओर मिलता है उसी क्वालिटी का? पहला तो मिलता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या क्वालिटी जितने स्टेट्स में मिलता है 4, 5, 6, 7, क्या आयरन ओर की ए ग्रेड क्वालिटी मैग्नेटाइट सब जगह मिलती है? नो। कहीं पर मैग्नेटाइट मिलता है, कहीं पर हेमेटाइट मिलता है,
कहीं लिमोनाइट मिलता है, कहीं पर सैटेलाइट मिलता है। हर इसी में क्वालिटी सब जगह अलग अलग है। नेक्स्ट था क्वांटिटी। अगर इतना सारा है ना 10,000 मिलियन टन्स आयरन और कोल झारखंड में है, क्या इतना ही सारा कोल आयरन और इंडिया के सारे स्टेट्स में है? नो, कहीं पर मिलते ही नहीं है। कहीं मिलता है तो बहुत थोड़ा सा मिलता है ना। कभी थोड़ा मिलता है, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 10 है, कभी 1 मिलियन है, कहीं पर 10,000 मिलियन है, सब जगह अलग मिलता है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सारे स्टेट्स में मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। तो जहां बहुत सारा होता है गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां से रिसोर्सेज को जिन स्टेट्स में नहीं मिलता है उनको वहां से उनको देगी कि भाई आप उनको दो, क्या कुछ नहीं मिलता। पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में बहुत सारा गेहूं होता है। एमपी ऑल्सो, मध्य प्रदेश, 4 स्टेट्स प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ व्हीट पूरे। और लेकिन ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं, पहाड़ों की जगह ऐसी जहाँ पर व्हीट बहुत कम होता है, गेहूं बहुत कम होता है या होते ही नहीं है। तो जहाँ ज्यादा होता है वहां से वो वहां हम भेजते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? रिसोर्स प्लानिंग में, ओके। और जो भी रिसोर्सेज हैं उसे हम सिस्टमेटिक यूज करना है, वाइडली यूज करना है, थोड़ा थोड़ा यूज करना है, सेव करना है, प्रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ओके। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाइजली यूज ऑफ रिसोर्सेज। आई थिंक नाउ यू हैव गॉट इट। आगे समझ में? और वाइस में कोई प्रॉब्लम है तो आई यूज टू रिकॉर्ड दिस क्लास, मैं रिकॉर्ड करता हूँ और उसे मैं आपको लिंक भेज देता हूँ और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी क्लास, फर्स्ट शायद मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, इसके बाद सेकंड क्लास से मैंने सारी क्लास रिकॉर्ड कर रखी है 10th की। तो आप वहाँ पर जाके क्लास को देख सकते हो कि मैंने किस दिन क्या पढ़ाया था। आप जब कोई टाइम हो यू कैन रिविजन कर सकते हो। वट एवर द क्वेश्चन इज देयर यू कैन नोट डाउन। क्योंकि जिनके घर नीचे के हैं, ग्राउंड फ्लोर के हैं, वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, सिग्नल वीक आते हैं फ़ोन के खास तौर से। मेरा वाईफाई पे लैपटॉप चल रहा है, जिनके वाईफाई पे लैपटॉप या फोन चल रहे हैं वहाँ सिग्नल अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन जिनका वाईफाई पे नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए आई एम सेंडिंग यू दिस लिंक। मैं हमेशा भेजता हूँ, अभी कल और परसों के पूरे कर रहा हूँ अपडेट। जैसे अपडेट हो जाएंगे कि टेक्स लॉट ऑफ टाइम, रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं लगता है, रिकॉर्डिंग साथ साथ होती है। जायद आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, वेट है बेटा अभी बताता हूँ। और लेकिन जब अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उसकी भी स्पीड अच्छी चाहिए वाईफाई की, है ना। तो जैसे अपलोड हो जाएंगे आई विल सेंड देयर लिंक। जायद खान वांट टू आस्क मी, लेट मी अनम्यूट यू। यस बेटा बोलो। सर आपका यूट्यूब पे चैनल है? तो मैं आपको क्लास में लिंक भेजता हूँ ना, तो वो यूट्यूब के लिंक होते हैं। तो सर आप बता दो कि वहीं से देख लेंगे। तो नहीं, ऐसे ढूंढना मुश्किल है ना, इट इज बेटर आप लिंक से चले जाओ सीधे, ठीक है। ओके सर। हाँ वरना तो मुझे भी ध्यान नहीं, बच्चों ने बनाया, मुझे कुछ पता नहीं, HPS के नाम से बनाया, जब पूरा क्या नाम है आई डोंट नो। जैसे आप लिंक पे जाओगे आपको पता चल जाएगा, है ना। तो जितनी ओके क्लासें सर। हैं मैं सारी वहाँ डाल देता हूँ। आपकी कोई मिस हो गई हो क्लास तो यू कैन सी देयर, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। जो भी क्लास किसी ने मिस कर रखी है वहाँ देख सकते हो, है ना। और 10th A और 10th F के बच्चे भी वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि उनकी क्लासें नहीं होती हैं, तो मैं उनको भी भेज देता हूँ, ठीक है। वो भी देख सकते हैं, ओके। ओके सर। ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग रिसोर्स प्लानिंग के लिए। explain why resource planning is a complex process. Explain why resource planning is a complex process. वो कहते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। आई एम टेलिंग यू, इतने सारे एग्जांपल दिए मैंने पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के, कोल का दिया, पेट्रोलियम का दिया, आयरन ओर का दिया, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, है ना। तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो लेट अस सी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। व्हाई पूछ रहा है, तो हम आंसर लिखेंगे। 3 हेडिंग्स हैं, पेज नंबर 4। द सेम हेडिंग्स यू कैन राइट, द सेम सेंटेंस, द सेम लाइंस यू कैन राइट फ्रॉम NCERT बुक। लेकिन जिन बच्चों को ये पूरा याद नहीं होगा या समझ में नहीं आएगा उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट हेडिंग्स कर रहा हूँ, वो आप नंबर 1, 2, 3 करके लिखेंगे। फिर उन हेडिंग्स को क्लास
ये एनसीईआरटी का पूरा पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं पीडीएफ ओपन कर दूँ। ओके, लेट मी ओपन द पीडीएफ, स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द बुक एंड this is your PDF on your screen. Hopefully you can see now. And this is resource planning. Okay. And we are here, resource planning India. Yes. I asked to write the question, why resource planning is a complex process. Stop. And the answer, point number 1, heading number 1. Identification and inventory. आपको सिर्फ इतने नोट करना है. Identification and inventory of resources. Stop. Identification and inventory of resources. Okay. अब इसमें लिखना तो सारा ही है, जो बुक में लिखा वो भी लिख सकते हो, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे भी अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। वो कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना कि ये लैंड सरफेस के अंदर या लैंड सरफेस के ऊपर ये एक रिसोर्स है which is very helpful for us, for mankind, for human being. Okay, identification, पहचान करना है, नंबर 1. नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना है कि ये जो रिसोर्स है, एग्जांपल लेते हैं, कोल है, वो इंडिया के किस हिस्से में मिलता है, किस स्टेट में मिलता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, और ढूंढना है, इन्वेंट करना है, उसे ढूंढना है, ठीक है। So identification and inventory of resources across the regions of the country, ये सब लिखना नहीं है, हेडिंग लिखना है, उसके आगे से सुनना है, समझना है। This involves surveying, सर्वे करना होता है, घर बैठ के हम रिसोर्स नहीं ढूंढ सकते, लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर बैठ के, बुक में देख देख के रिसोर्स नहीं ढूंढ पड़ते, हमको जंगलों में, इंडिया के सारे एरिया में, झारखंड में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन कौन से रिसोर्स मिलते हैं, कोल के अलावा और कौन से रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ बैठ के नहीं पता चलेगा, वी हैव टू गो देयर, है ना। राजस्थान में कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके लिए हमें वहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा। कश्मीर में कौन से रिसोर्सेज हैं, वी हैव टू गो देयर एंड सर्च देयर। ये क्या होता है? सर्वे, फील्ड सर्वे, फील्ड में जाके पता करना कि कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज मैपिंग, फिर हम मैप बनाएंगे, है ना, इंडिया का मैप लेंगे, मैप बनाएंगे कि अगर कोल है तो इंडिया के किस किस स्टेट में मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी सिटीज में मिलता है। नंबर 3, कितना एरिया वो कवर करते हैं। जब आप अपनी बुक उठाते हो, आप देखते हैं वो कोल कहाँ मिलता है इंडिया में, तो यू ओपन द मैप एंड यू सी द कोल एरियाज आर शोन बाय द डॉट्स, और उनके वहाँ पर नाम लिखे होंगे, कोल माइंस, है ना। ऐसे आयरन और माइंस, कॉपर माइंस, बॉक्साइट माइंस, दीज आर द प्लेसेस वेयर these things are found। कैसे पता चला? सर्वे करके, वहां जाके, इंडिया के सारे स्टेट्स में जाके पता किया कि कौन से स्टेट में क्या, कौन सा रिसोर्स मिलता है, क्या चीज मिलती है, लैंड के अंदर हो रिसोर्स या लैंड के ऊपर हो, और फिर हम मैप बनाते हैं कि यहाँ यहाँ ये चीजें मिलती हैं, जयपुर में क्या मिलता है, जोधपुर में क्या मिलता है, राइट, ऐसे पता करना। उसके बाद क्वालिटेटिव, क्वालिटी कैसी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। कोल की 4 क्वालिटी बताई थी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, टीट। इनमें से कौन सी क्वालिटी कहाँ कहाँ मिलती है वो हम बताएंगे, पता करेंगे और मैप में शो करेंगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटी, एस्टिमेशन, कितना है, आइडिया लगाना, इतने बड़े एरिया में ऊपर है तो नीचे कितनी गहराई तक मिल रहा है, तो एक माइन खोदेंगे, उस माइन से जब खोदते हैं, ड्रिलिंग करेंगे, तब पता चलेगा कि नीचे 1 किलोमीटर तक कोल है या आयरन ओर, या 2 किलोमीटर तक है या 3 किलोमीटर तक है, और ऊपर कितने एरिया में मिल रहा है। तो जगह जगह जाके हम ड्रिलिंग करते हैं, जैसे पानी के लिए ड्रिलिंग करते हैं, सेम ड्रिलिंग इज डन फॉर
रिसोर्सेज। आगे बात समझ में? तो वंस अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज द हेडिंग। उसमें आगे लिखेंगे across the country we have to go for survey. Yeah, this process involves across the country. This process involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. चाहे ये लिख दो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से, जो मेरी लैंग्वेज है आप वो लिख दो, अपनी लैंग्वेज से वो लिख दो, बट द मीनिंग शुड बी सेम। आंसर सेम होना चाहिए कि हम पूरे इंडिया में सर्वे करते हैं, मैप बनाते हैं, क्वालिटी का पता करते हैं, क्वांटिटी का पता करते हैं, और तब पता चलता है हमें इंडिया में कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है। ओके, सेकंड पॉइंट, ये हेडिंग लिखेंगे आप, evolving a planning structure. Evolving, EVOLVING, evolving a planning structure। बस ये हेडिंग पड़ेगी, इसको आगे पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एंडोड, इसे नहीं लिखना है, बस हेडिंग लिख के छोड़ देना है। हेडिंग कितनी लिखनी है आपको? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन and evolving a planning structure with appropriate technology, skill and institutional setup। हेडिंग पे चलते हैं। evolving a planning structure, आपको नहीं याद रहता ये भी छोड़ दो, आप इतना लिख दो हेडिंग में, प्लानिंग स्ट्रक्चर, ओनली प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हेडिंग नंबर 2 इज प्लानिंग स्ट्रक्चर, सिंपल हेडिंग। उसमें क्या लिखेंगे? प्लानिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? हमारी प्लानिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा? तो हम इतना सारा आज आयरन और से आयरन बनाएंगे, सोचने से नहीं होगा ना। उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्री होनी चाहिए, बहुत बड़ा फैक्ट्री होना चाहिए, है ना? ठीक है, फैक्ट्री कैसे? हाथ से चलाने वाली, बिजली से चलाने वाली, या कंप्यूटर से ऑटोमेटिक चलाने वाली? दैट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मीडियम सी टेक्नोलॉजी है, या बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है? ठीक है, लेट्स सी। प्लानिंग स्ट्रक्चर कैसा? विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। स्किल, जो वहाँ काम करने वाले हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, वी रिक्वायर एक्सपर्ट इंजीनियर्स, है ना? इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और बहुत बड़े हमारे पास उसके इंस्टीट्यूशन सेटअप मीन्स कारखाने होने चाहिए, है ना? प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, आयरन और प्लांट बनाएंगे तभी तो आयरन और को यूज करके हम आयरन शीट्स बनाएंगे। ठीक है, फॉर implementing the resource development plans, मैंने क्या कहा? सोचने से कुछ नहीं होता। प्लानिंग स्ट्रक्चर कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा 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 करेंगे। हमारा जो प्लानिंग भी होगी वो बेस होगी कि हमारे पास क्या है। इंडिया अगर कुछ प्लान करती है तो अपने रिसोर्सेज देखेगा, क्या रिसोर्सेज में क्या आते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर हमें आयरन स्टील प्लांट लगाना है इंडिया में, किसी भी स्टेट में जहाँ पर आयरन ओर मिलता है, जहाँ पर कोल मिलता है, तो पता होना चाहिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। अगर आयरन ओर से आयरन शीट बनाने का टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ठीक है, ओके, मींस हमारे पास बिग प्लांट है तो वो बनाएंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास प्लांट नहीं है, तो हम आयरन ओर को सीधे ही एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब क्या करते हैं? हमारे पास प्लांट्स बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट, वी यूज आयरन ओर इन द प्लांट एंड वी मेक आयरन शीट्स, डिफरेंट थिंग्स। और जो आयरन की डिफरेंट चीजें बनती हैं, शीट्स बनती हैं, वो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ओके, बट they don't have the technology,
there are so many countries in South Africa and South America continent which have so many resources, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो उसको आयरन से आयरन शीट नहीं बना पाते। वो आयरन और कच्चा माल यानी कि आयरन और ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, उनको प्रॉफिट कम होता है। जो कंट्रीज फिनिश गुड बनाते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तब बनेगा जब हमारे पास फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, ओके, या प्लांट हो, स्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, और उसमें काम करने वाले स्किलफुल हो, पढ़े लिखे हो, तभी तो काम होगा। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 में है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। आप हेडिंग में लिखेंगे नंबर 3, हेडिंग सिर्फ हेडिंग डालेंगे, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, बस अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। अब आपको सुनना है सिर्फ, ओके। इसमें हम क्या कहना है, ये सेंटेंस क्या कहता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश में और फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ तो कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट पे, बट स्टेट गवर्नमेंट कैन रन देयर स्टेट एज देयर विश। वो अपने हिसाब से, दे आर, दिस इज डेमोक्रेसी एंड दे आर फ्री टू रन देयर स्टेट एज दे रिक्वायर, एज दे नीड, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है कि किस रिसोर्स को हमें कितना यूज करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, यानी सारा एक्सपोर्ट कर दो, अपने आप ही यूज करना है। कोल है, सारे एक्सपोर्ट कर दोगे तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, है ना। कोल को अपने आप ही यूज करना है, अपनी इंडस्ट्री को भी चाहिए कोल, और हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड से कहा कि सबसे ज्यादा कोल आपके पास है, तो आप 50% एक्सपोर्ट करोगे, 50% यूज करोगे। और चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, 60% एक्सपोर्ट करोगे, 40% यूज करोगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो बहुत फायदा होता है एक्सपोर्ट करने से, हम तो 100% एक्सपोर्ट करेंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम 100% सेल करेंगे एंड वी विल अर्न लॉट ऑफ मनी। मनी तो अर्न करेंगे, लेकिन कोल इंडिया में कम हो जाएगा। और इंडिया के जो थर्मल पावर हैं, आयरन स्टील हैं, पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल्स हैं, जूट इंडस्ट्री है, sugar industry है, there are so many big industry which requires coal, okay, which requires coal। उनको नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी, तो इसमें हमें लॉस हो जाएगा। इसलिए ये सेंटेंस क्या कहता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, मैच करना है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान। जो नेशन का डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ ही चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है उसके साथ चलना है ना। ममता बनर्जी की तरह अलग नहीं चलना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ईस्ट चलो, सारा देश ईस्ट में जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल वेस्ट में जा रही है। ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने। तो देयर आर सो मेनी चीफ मिनिस्टर्स हु डोंट फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन सो मेनी थिंग्स, नॉट इन वन थिंग, सो मेनी थिंग्स। मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ, तो आपको कोई नाम नहीं लिखना, किसी को समझाने के लिए बोला है। तो सिंपल सी बात है, सारे स्टेट्स गवर्नमेंट के रूल एक्शन को फॉलो करेंगे, only then we can match resource development plan, है ना, with overall national development plan। like here आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो कोरोना वायरस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर लॉकडाउन किया है 3 मई तक, तो सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई स्टेट कहता नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो बाहर घूमेंगे, तो यू कैन गो, आप घूम सकते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम फिर उनको हो जाएगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है वो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, है ना। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपका टाइम पूरा हो गया है, 12:41 हो गए हैं, सो आई एम एंडिंग दिस टुडे हियर, ओके। और